ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اب ہم آپ سے معین سوال کر رہے ہیں ظفر اللہ شاہ صاحب، کیا آپ رسولن جو لفظ ہے اس کو عام جو ہے اس سے مراد لینے کے جائز سمجھتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے مراد لے باقی رسول یا ہر رسول تو وہ بندہ گمراہ ہے؟ جی میں نے جواب کئی دفعہ دے دیا، میں نے تو ختم نبوت پر ثم جاءکم رسول سے مراد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے کہہ دیا کہ میرے خیال آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں تو پچھلے آپ سے کئی سالوں سے میری بات ہی یہی ہو رہی کہ یہاں رسول سے مراد ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا اب سورہ آل عمران کی جو آیہ کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا، تو یہاں رسول ان سے خاص رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عام رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا، جب تک آپ سوال کا جواب نہ دیں گے آپ ہم کمزور میدان میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ہر وہ شخص اگر وہ یہاں پر رسولن سے مراد ہر رسول لے، کیا وہ پھر آپ کے نزدیک سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے نزدیک وہ گمراہ ہے؟ ابھی پہلا تو موضوع مکمل، ڈاکٹر صاحب پہلا تو موضوع مکمل ہونے دینا۔ میرے پہلے جو سوالات ہیں ان کے تو آپ نے جوابات نہیں دی، میں جواب دے چکا ہوں اس کا۔ میں نے رسول سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، میں نے دے دیا جواب کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے علاوہ ہر شخص گمراہ ہے اگر وہ اس سے مراد ہر رسول لے۔ وہ جب کوئی شخص سامنے آئے گا تو دیکھیں گے، ابھی آپ جس موضوع پر تو یہاں رسول ان سے خاص رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عام رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ اور میں رسول ان سے مراد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہوں۔ اب اگر کسی نے اوروں نے اگر تعویلات کی ہوں گی تو وہ ان سے پوچھا جائے گا، لیکن میرے تو یہاں رسول ان سے خاص رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عام رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ آتی۔ بات آپ نے بڑا زور دیا اس بات پر کہ یہاں مجھے پتہ نہیں ہے، غالباً علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ رسول ان سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے حوالے پیش کیے بریلویوں کی تفسیریں، دیوبندیوں کی، کہ اس بات پر تمام متفق نہیں ہیں، تو یہاں تک تو میں بات مانتا ہوں۔ جی پیارے بھائیو، دوسرے حصے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ خاکسار نے لنک شیئر کر دیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے دوست محمد دین سیالوی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا مائک کھول دیتا ہوں۔ جی سیالوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی آپ کا پروگرام میں ابتدائی حصہ تو نہیں سن سکا کیونکہ 1 بجے نماز تھی، تو نماز کے لیے گیا، تو وہاں سے آیا تو میں نے جو کچھ حصہ سنا ہے اس پر میں بات کروں گا۔ ایک تو آپ کے مہمانوں میں سے ایک صاحب مربی صاحب کہہ رہے تھے کہ سورہ آل عمران کی جو آیہ کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا، تو یہاں رسول ان سے خاص رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عام رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔
تو यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन उससे आगे उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारे पास 2, 3, 4 रसूल आ जाएं तो उन पर ईमान लाना, उनकी नुसरत करना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहां से उन्होंने पेश किया 3, 4 रसूल? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से पहले 1300 सालों में कोई एक हवाला, कोई तफसीर, किसी मुजद्दिद, किसी मुफस्सिर की बात बताएं कि उन्होंने यहाँ इसका माना ये किया है कि तुम्हारे बाद जो भी रसूल आ जाएं, जितने आ जाएं, उनकी तस्दीक करनी है और उन पर ईमान लाना है। आप कोई हवाला पेश नहीं कर सकते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब से पहले। तो मेरा सवाल ये है कि पिछले 1300 साल में कोई मुजद्दिद, कोई मुफस्सिर आपके अकीदा की तायीद नहीं करता। 1300 साल आप उम्मत मुसलमा से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं रखते और 1300 साल बाद आकर आप ये दावा करते हैं कि हम ही असल में उम्मत मुसलमा हैं और हम ही हकीकी मुसलमान हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? ये किस तरह माना जा सकता है? पहला मेरा सवाल ये है कि पिछले 1300 साल में कोई हवाला पेश करें कि किसी ने लिखा हो कि यहाँ रसूल उनसे मुराद आम है, आपसे बाद जितने भी रसूल आ जाएं उन पर ईमान लाना होगा। दूसरी बात, आपने बड़ा जोर दिया इस बात पर कि यहाँ मुझे पता नहीं है, गालिबन अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने कहा था कि तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि रसूल उनसे मुराद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने हवाले पेश किए बरेलवियों की तफसीरें, देवबंदियों की, कि इस बात पर तमाम मुत्तफिक नहीं हैं। तो यहाँ तक तो मैं बात मानता हूँ, लेकिन बात यह है कि आपका और हमारा इख्तलाफ इस बात में नहीं है कि रसूल उनसे मुराद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या और भी कोई रसूल हैं। इस बात पर इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ इस बात पर है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और रसूल आ सकता है या नहीं। तो आप पर यह वाजिब है कि आप कोई बरेलवियों की कोई तफसीर मुस्तनद दिखाएं, कोई देवबंदियों की मुस्तनद तफसीर दिखाएं कि जिसमें ये हो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आ सकता है। तो आप लोगों को वैसे ही चक्कर न दिया करें, जो असल मसला है उस पर बात किया करें कि कोई तफसीर ऐसी दिखाएं कि जिसमें ये लिखा हो कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और रसूल आ सकता है। ये है हमारा और आपका इख्तिलाफ। और इसी बात पर सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब बात कर रहे थे कि ये आया करीमा खातमुन नबीयीन की दलील है कि आपके बाद कोई रसूल नहीं है। इस बात पर वो उन्होंने ज़िमनी बात की कि यहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं या कोई और मुराद है, उसको आप लेके बैठ गए। जो असल कज़िया है उसकी तरफ आप आए ही नहीं कि आपके बाद कोई रसूल नहीं है। ठीक है, तो ये है असल आपका और हमारा इख्तिलाफ। और एक और बात, आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं। आपने ये कहा कि बरेलवी फिरका वालों को दूसरी बात, आपने ये तफसीरों के हवाले से जो बात की कि उन्होंने कहा कि उनसे रब पूछेगा जिन्होंने ये लिखा है, तो हमसे कहते हैं कि आप जवाब दें। असल मसला और है, वो ये है कि हमारे जो भी मुफस्सिर हैं वो जो कुछ भी लिखते हैं उनकी जिम्मेवारी है, हम उनका इनकार कर दें, हम काफिर नहीं होते। लेकिन आपके मिर्जा साहब ने जो कुछ लिखा है आप उसका इनकार करें तो आप काफिर हो जाते हैं। तो ये इख्तिलाफ है कि हम अगर किसी का इनकार कर दें तो उसको अपने साथ ना मिलाएं कि आप उस बात का इख्तिलाफ करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें बड़ा फर्क है। हमारा कोई मुफस्सिर लिखता है, वो जितना भी बड़ा हो, हम उसको जितना मानते हों, अगर हम उसकी बात का इनकार कर दें तो हम पर कोई कुफ्र लाजिम नहीं आता। लेकिन आप मिर्जा साहब की बेशुमार बातों का इनकार करते हैं, उनको नहीं मानते और आप पर कुफ्र लाजिम आता है। आप ये कहते हैं कि ये आया करीमा
नस्से कती नहीं है खत्म नबूवत पर, तो एक लम्हे के लिए अगर आपको आपकी बात मान लें तो जो आयात नस्से कती हैं आप तो उनका इनकार करते हैं, जिनको मिर्जा साहब भी मानते हैं कि ये आयत खातमुन नबीयीन में नस्से कती है, मेरे बाद आपके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल नहीं है, आप पर नबूवत खत्म हो गई है, जो नबूवत का दावा करेगा वो काफिर होगा, दायरा इस्लाम से खारिज होगा, बल्कि लानती तक और मालूम नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो आप तो उनका इनकार करते हैं, तो इस आय करीमा का इनकार करने से आपको कैसे रोका जा सकता है? जी ठीक है सयालवी साहब, हो गए हैं चार सवाल हो गए हैं आपके, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इससे पहले कि मैं जरी भाई की तरफ जाऊं और रफाकत भाई की तरफ जाऊं, पहली बात तो दोस्तों आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मुबारक इस बात की है कि जो बात हम सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब को पिछले 2-3 प्रोग्रामों से समझा रहे थे, वो बात आपके सामने साबित हो गई है। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब हमारे सामने ये तासुर देते रहे कि गोया उम्मत मुस्लिमा के नुमाइंदा के तौर पर वो हमारे सामने ये बातें पेश कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा जो बात कर रही है, जमात अहमदिया उससे हट के बात कर रही है। सयालवी साहब ने ये जो सवाल नंबर 2 किया, उसमें वो वाज़े तौर पर मान गए कि हम जो बात कर रहे थे कि आयत मिसाकुन नबीयीन में लफ्ज़ जो है रसूलुन, उसमें रसूल से मुराद खास भी लिया जा सकता है और आम भी लिया जा सकता है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सयालवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ये बात है आसान कर दी। उसके बाद चलते हैं जरी भाई के पास। जी जरी भाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मोहतरम मोहम्मद दीन सयालवी साहब का हम बड़ा शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आके इस मुअम्मा को हल फरमा दिया है कि जो तकरीबन अरसा दराज से एक गुफ्तगू चल रही थी सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब के साथ, जिसमें वो बार बार यही बात बयान फरमा रहे थे और यही नुक्ता बार बार बयान फरमा रहे थे कि जो रसूलन है इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा किसी और मुफस्सिर ने, किसी और मुजद्दिद ने ये बात बयान नहीं फरमाई, सिर्फ यही एक बात है कि इससे मुराद रसूल है। और आपने आके उन सारी बातों को आपने उसकी तरदीद फरमा दी और ये बात आपने बयान फरमा दी कि नहीं, उससे मुराद रसूल है, लेकिन वो बाकी अंबिया की तरफ इशारा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद किसी और रसूल की तरफ इशारा नहीं है। अब हमारा जो इख्तलाफ रह गया वो सिर्फ इस बात पर रह गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद को नबी आ सकता है या नहीं आ सकता, इस बात पर हमारा इख्तलाफ हो गया। यानी मिसाकुन नबीयीन पर जो हमारी बहस चल रही थी वो इस मामले पर खत्म हो गई है कि आपने मान लिया है, आप मुतरिफ है कि इसमें सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बयान फरमाई गई। अच्छा, अब उस मिसाकुन नबीयीन में जो मिसाक लिया गया है वो किन बातों के लिया गया, किस चीज के लिया गया, इसी आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी है। इस आयत में जो बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है वो किस चीज का मिसाक था कि जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आए तो मिसाकुन नबीयीन से क्या मुराद है? मिसाकुन नबीयीन से मुराद है कि अंबिया से मिसाक लिया गया। अगर आपने इन अंबिया में से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालना है तो आपको कोई करीना देना पड़ेगा, आपको कोई ऐसी आयत देनी पड़ेगी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत से निकाले कि ये मिसाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम मजीद बगौर मुताला करें तो सूरह आज़ाब में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तरीके से ये बात बयान फरमाई है कि ये मिसाक मिसाकुन नबीयीन जो लिया गया ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दिया गया। वगरना अगर बाफर्ज महाल एक लम्हे के लिए तसव्वुर किया जाए कि वो आयत मुबारका सूरह आज़ाब में अगर ना भी होती तो मिसाकुन नबीयीन में इस बात की तरफ वाज़ेह और रोज़ रोशन की तरह इशारा था कि इस आयत में तमाम अंबिया से मिसाक लिया गया। और मिसाक क्या था कि जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आए तो मुझ पर ईमान लेके आना और वह तुम्हारा मुसद्दिक होगा। तो ये बात तो वाज़ेह होगी। अब आया इस बात पे इख्तिलाफ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद को नबी आ सकता है या नहीं आ सकता। तो एक बात तो ये कतई तौर पर साबित होगा कि इस आयत से जो खत्म नबूवत का आप मफहूम निकालते हैं वो किसी सूरत में साबित नहीं होता, किसी सूरत में साबित नहीं होता। और आप सयालवी साहब आपने एक बात बयान फरमाई है कि 1300 साल में किसी मुफस्सिर ने या किसी मुजद्दिद ने यह बात बयान नहीं की।
हालांकि मोहतरम मुस्लिम अहमदी भाई ने इस बारे में हवाले भी आपके सामने पेश किए थे और डॉक्टर मोहम्मद यही साहब ने इस बारे में हवाले पेश करवाए थे, आपने वो नहीं देखे, उसमें मुफस्सरीन के हवाले भी दिए। और आपने यहाँ पे एक बात बयान की है कि अगर आप किसी मुफस्सिर का या किसी मुजद्दिद की तफसीर का अगर आप इनकार कर दें तो आप काफिर नहीं कहलाएंगे, जबकि अहमदी मुसलमान अगर मिर्ज़ा साहब की किसी तफसीर का इनकार करेंगे तो वो काफिर कहलाएंगे। सियालवी साहब गालिबन आप ये बात भूल चुके हैं कि अगर आप अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के किसी इजमाई किसी बुनियादी अकीदे का अगर इनकार करते हैं तो आपको फिर बरेलवियत के साथ में नहीं रखा जाएगा, बल्कि आपको बरेलवियत से ऐलान बरात करना पड़ेगा, या फिर वो जो बरेली वाले हैं वहां से फतवा निकलेगा कि मोहम्मद दीन सियालवी साहब जो है ये लंदन में जो मुकीम है या जिस जगह में मुकीम है, इन्होंने अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की फलाह तफसीर से फलाह अकीदे से इन्होंने इख्तलाफ किया, तो इसलिए अब इनका ताल्लुक बरेलवियत से नहीं है, तो उनके नजदीक आप काफिर हो गया। काफिर से मुराद ये है कि आपने इनकार कर दिया है। और अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने अपनी आखिरी वसीयत में जब वो इंतकाल फरमा रहे थे तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरी बातों पर ईमान लाना सब फर्जों से बड़ा फर्ज है, मेरी किताबों को पकड़ के रखना सब फर्जों से बड़ा फर्ज है। इसलिए मोहम्मद दीन सियालवी साहब ये बात कतई ना करें आप कि अगर आप किसी तफसीर का इनकार करें तो आप काफिर नहीं होंगे। आप इस उम्मत मुस्लिमा में, इस उम्मत मुहम्मदिया में सिर्फ बरेलवी जमात है जो अपने आप को मुसलमान कहती है, बाकी सारों को वो जहन्नमी मानती है, बाकी सारों को गुमराह नहीं बल्कि जहन्नमी तक वो मानती है। अब इस बात पे हम लेते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है या नहीं आ सकता, तो आप देर को तसव्वुर करें, आप अपनी किताब इरफान शरीयत खोलें, आप बाकी बातों को छोड़ दें। हालांकि कुरान इस बात का मुसद्दिक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस बात का मुसद्दिक है, आपके अपने मौज़ूआतुल कबीर इमाम मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह ताला इस बात पर वो मुसद्दिक है, इस बात पर तस्दीक करते हैं कि खातमुन नबिय्यीन का क्या तर्जुमा और क्या तशरीह है। लेकिन आप ये देखें कि आपके अपने इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को उन्होंने ज़िल्ली तौर पर नबी माना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो ज़िल्ली तौर पर मकाम में नबुव्वत पर फाइज हैं। ये तक बातें उन्होंने अपनी किताब इरफान शरीयत में बयान फरमाई हैं। और आप ये बताएं, आप लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद ज़िल्ली, बरूज़ी, उम्मती, गैर तशरीह हर किस्म की नबुव्वत बंद है, और जो तशरीह ये करते हैं कि किसी को नया नबी नहीं बनाया जाएगा, किसी को नई नबुव्वत नहीं दी जाएगी, किसी को नबी बनाया नहीं जाएगा, नबी पैदा नहीं हो सकता, ये इस्तिलाह ना ही कुरान से साबित है, ये इस्तिलाह ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से साबित है, और ना ही ये आइमा अरबा से साबित है कि कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। ये आपकी अपनी इस्तिलाह है, वगरना सही मुस्लिम की रिवायत चीख चीख कर ये बात बयान कर रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मसीह की बशारत दी थी कि वो मसीह नबीउल्लाह होगा, नबीउल्लाह होगा, नबीउल्लाह होगा। अब आप यहाँ पर फिर ये बात बयान करने पर शायद मजबूर हो जाएंगे कि गालिबन मैं हयात वफात मसीह अलैहिस्सलाम पर जा रहा हूँ, हरगिज नहीं। मैं इसी अकीदा खत्म नबूवत पर यह दलील आपको दे रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमा दिया है कि मेरे बाद जो मसीह आएगा वो नबीउल्लाह होगा, और एक बार भी नहीं बल्कि 4 बार बयान फरमाया। और एक और मुस्तदरक लिल हाकिम की रिवायत है कि महदी के बारे में ये रिवायत मिलती है कि हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी। कुरान को अगर आप खोल कर पढ़ेंगे तो कुरान में खलीफतुल्लाह सिवाय अंबिया के किसी को भी नहीं कहा गया, खलीफतुल्लाह अल्लाह के नबी को कहा जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं कहा जाता। तो हदीसें नबीउल्लाह क्या पुकार रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि नबीउल्लाह की गुंजाइश नहीं है, नबी किसी को नहीं कहा गया, नबी आ नहीं सकता, नबी पैदा नहीं हो सकता। सुने, आपके अपने आप कहते हैं जी इसके ऊपर हमारा उम्मत का इजमा है जो नबी पैदा नहीं हो सकता। आपको इसी प्रोग्राम में हमने ये जो प्रोग्राम चलते जाते हैं, इसी प्रोग्राम में हमने ये दलील दी थी, आपके सामने रखी थी कि तहज़ीरुन नास में ये इबारत मौजूद है कि अगर बाद ज़माना नबी को नबी पैदा हो जाए तो आपकी खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा। अब आपने सियालवी साहब इस बंदे पे कुफर का फतवा नहीं लगाना, क्योंकि अगर आपने इस बंदे पर कुफर का फतवा लगाया तो आपका इजमा का जुदा है वो गलत होगा, आपका इजमा का दावा जो है वो बातिल हो जाएगा, क्योंकि आपको ये इजमा है, आप कहते हैं कि इस बात पर इजमा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो नबी पैदा नहीं हो सकता, तो आपका इजमा तो टूट गया। तो ये दलील देना इस बात पर, इस बात का सबूत है कि इस बात पर भी इजमा नहीं है कि नबी पैदा नहीं हो सकता, ये भी आप लोगों की अपनी जो टर्म्स हैं जिसको आप इस्तेमाल फरमाते हैं। इसलिए आप लोगों के अकीदे के मुताबिक भी, आप लोगों के नजरिए के मुताबिक भी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब नज़ूल फरमाएंगे तो वो नबीउल्लाह की हैसियत से आएंगे, वो उम्मती की हैसियत से नहीं आएंगे। अगर आप कहते हैं कि वो उम्मती की हैसियत से आएंगे तो मोहम्मद दीन सियालवी साहब आपसे बड़े प्यार से हमारी ये गुजारिश है कि आप ऐसे हमें किसी जगह से, किसी भी हदीस की किताबों से, ज़ख़ीरे हदीस से कोई ऐसी हदीस हमें जरूर बतलाइएगा जिसमें मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को उम्मती कह के पुकारा गया हो। जज़ाकल्लाह। जी सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वाले, मैं
मैंने सुना है आपका जरीउल्लाह साहब का जवाब, लेकिन शालवी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैंने कहा मैंने जवाब, ये मेरी आवाज, दो डिवाइस हैं, एक नीचे भी ये मोहम्मद, ये भी कोई बंदा है, ये दो डिवाइस हैं जी। ऊपर वाली। अच्छा, एक मिनट इनको निकाल एक को बंद कर दे फिर अगर। साहब बोले जी मैंने कहा मैंने जवाब सुना है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने कहा था 1300 सालों में से कोई हवाला पेश करें, किसी ने लिखा हो कि रसूल उनसे मुराद 2-4 रसूल कोई भी आ जाए, तो कोई एक हवाला भी आपने पेश नहीं किया। स्पेसिफिक हवाला पेश करें, फला मुजद्दिद ने, फला मुफस्सिर ने ये लिखा है कि रसूल उनसे मुराद ये है कि कोई भी रसूल जितने बाद में आ जाए उनकी तस्दीक करनी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई एक हवाला मुझे पेश करें। आपने बातें इधर उधर वही जैसे आप उलझाते हैं लोगों को, फला आला हजरत बरेलवी साहब ने ये लिख दिया, फला ने ये लिख दिया। आपने कहा कि इमाम अहमद रजा खां बरेलवी की बात का मैं इनकार करूं तो मैं काफिर हो जाऊंगा, तो ऐसी बात नहीं है। इमाम अहमद रजा खान ने जो अकायद बयान की उस अकीदे का अगर वो अकीदा बरहक है उसका मैं इनकार करूं तो काफिर होऊंगा। आला हजरत की किसी बात का इनकार करने से मैं काफिर नहीं होता। तो ये भी आप लोगों को उलझाते हैं, वैसे ही कोई बात क्लियर नहीं करते। तो मुझे कोई एक हवाला पेश करें पिछले 1300 साल में मिर्जा कादियानी साहब से पहले कि वहां ये लिखा हो कि रसूल उनसे मुराद कोई भी रसूल, नबी रहमत के बाद जितने रसूल आ जाएं 2, 4, 5, वो हवाला मुझे चाहिए, वो पेश करें। ठीक है सैलवी साहब, मेरा ख्याल आप बात को समझे नहीं है। जरी भाई ये बात आपसे कर रहे थे कि अगर मैंने जो सवाल किया था वो बात करें, आप कोई और सवाल ना करें। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ सैलवी साहब, आपको वही बात कर रहा हूँ। बात ये है कि जहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद किसी शख्सियत के आने का ताल्लुक है, वो आप और हम दोनों मुत्तफिक हैं। आप भी एक रसूल के आने के कायल हैं। मैं आपसे हवाला पूछ रहा हूँ, कोई हवाला बताएं जिसमें रसूल उनका माना उन्होंने ये लिखा हो कि कई रसूल आपके बाद आ सकते हैं और उन तमाम पर ईमान लाना जरूरी है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप फिर इधर उधर करते हैं बात। मेरा ख्याल है यहाँ पर आपको थोड़ी सी गलती लगी है। हमारे जो दोस्त बयान कर रहे थे उन्होंने जो कई रसूल जो उन्होंने अरबी पढ़ रहे थे ना, कुरान पाक का तर्जमा मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कुरान पाक के तर्जमे की बात की थी, उसमें लिखा हुआ है कई रसूल। ठीक है, ये नहीं कि दो लिखा कई रसूल। जो जमात अहमदिया का तो तर्जमा है उसकी बात कर रहा हूँ सैलवी साहब। आपको दोबारा आपने क्यों लिखा है, आप क्यों ऐसा तर्जमा करते हैं जो उम्मत मुसलमान के पिछले 1300 साल में किसी ने नहीं किया? मैं बता देता हूँ सैलवी साहब, मैं बता देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। हम ये तर्जमा क्यों करते हैं, इसलिए कि आपके बड़ों ने ये तर्जमे किए हैं। ये देखें तफसीर मजरी, ठीक है जी, तफसीर मजरी में यही तर्जमा लिखा हुआ है। तफसीर मजरी में इसी आयत के नीचे ये लिखा हुआ है कि यानी अल्लाह ने हर नबी से पुख्ता ले लिया था कि अपने बाद आने वाले नबी की तस्दीक करना और अपनी उम्मत को भी हुक्म देना कि वो आने वाले नबी की पैरवी करें। तो यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा रसूलुल्लाह का जिक्र है ना, यही जमात अहमदिया ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये है एक बात। यही रसूलुल्लाह के अलावा जो थे वो तो अपनी उम्मतों को ये तबलीग करते आए, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जी जी जी, अब मैं उधर ही आ रहा था, आपने बिडल में टोक दिया। बात यह है सैलवी साहिब, आप भी ईसा रसूलुल्लाह, ईसा नबीउल्लाह के आने के कायल हैं या नहीं है? जी, आप जो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को नबीउल्लाह कहा गया है, तो वो कहा गया है कि आप नबी थे जब आपका दौर था और आप नबी हैं, लेकिन आप पहले मबूस हो चुके हैं। आप तफसीरें पढ़ें कुरान की, जहां भी खत्म नबूवत का मसला है वहां ये लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले नबी बन चुके। हमारा ये अकीदा है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हर जगह खातमुन नबीय्यीन की तफसीर यही। एक मिनट यानी आप ये फरमा रहे हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आपके नजदीक दोबारा नाज़िल होंगे तो वो नबी और रसूल नहीं होंगे? मैं आपको कह रहा हूं कि वो नबी हैं,
लेकिन उनका दौर गुजर चुका है, वो पहले नबी थे, उनका दौर नबी रहमत से पहले खत्म हो चुका। आप दोबारा आएंगे, नबूवत आपके पास होगी, लेकिन अपनी नबूवत का ऐलान नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं नया नबी हूं, मुझ पर ईमान लाओ। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे होंगे। सियालवी साहब, इसमें और आपका और हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। पहली बात तो ये है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो नबी नहीं होंगे, फिर साथ ही कहते हैं वो नबी होंगे। उनकी नबूवत का दौर गुजर होंगे, मैं कह रहा हूं कि वो नबी पहले थे, नबूवत उनकी दौर खत्म हो चुका, नबूवत का मनसब उनके पास है, लेकिन अब उनकी नबूवत का दौर नहीं है। तो अब वो किस हैसियत से आएंगे? वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा की हैसियत से आएंगे, यानी उम्मती की हैसियत से। जी बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ये आपने जज़ाकल्लाह सियालवी साहब, मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ इस पर आपके आला हजरत का। दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि ये हमारे गैर अहमदी उलमा हैं, ये अवाम को जो है वो गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें किया करते हैं कि गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नजूल उनका होगा उसके बाद वो उम्मती की हैसियत से आएंगे, खलीफा की हैसियत से आएंगे। गोया उम्मती होना तो रसूल होने या नबी होने के कोई बरखिलाफ चीज है, नंबर एक। दूसरा, ये तासर देते हैं कि गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहली उम्मती नहीं थे, आप उम्मती बनेंगे। ये देखें जी, फतावा रिजविया वॉल्यूम 29 पेज 109 to 112, मसला नंबर 4146। किसी ने आला हजरत से ये सवाल किया और उसी का ये कौल है, यानी वो बंदा ये कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर उतरेंगे तो वो रसूल होंगे या नहीं, और अगर रसूल ना होंगे और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस वक़्त हो तो खिलाफे कलाम पाक होगा कि अल्लाह ताला किसी की रसालत ना छीनेगा, और क्या उनकी उम्मत बिला रसूल के रह जाएगी। ये है जी कौल, ये उनका सवाल नंबर 6 है। चलें जी, हम आला हजरत से पूछ लेते हैं कि आला हजरत इसका क्या जवाब देते हैं। आला हजरत यहाँ पे ये देखें प्यारे भाइयों, ये है जी इसका जवाब नंबर 6। ये देखें, फरमाते हैं हाशा, ना कोई रसूल रसालत से माजूल किया जाता है, ना सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसालत से माजूल होंगे। इसके ऊपर पहला सवाल तो ये खड़ा होता है, बहुत बड़ा सवाल, कि हमें ये बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई रसूल आ गया, कोई मुसद्दक आ गया, तो ये तो आयत खातुन नबीयीन के खिलाफ वर्जी होगी। आला हजरत उनको कह रहे हैं वो माजूल नहीं होंगे, वो रसालत उनकी कायम होगी। ना हुजूर का उम्मती होना रसालत के खिलाफ, वो कबले नजूल, गौर से सुनिएगा, अपने अहद में भी हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती थे। और आगे चलते हैं, आला हज़रत क्या फरमाते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये साफ नजर आ रहा है, ये इसको बड़ा करूं थोड़ा सा। ये डॉक्टर साहब जूम कर लें इसको। अच्छा एक मिनट, ये ना, हाँ मैं इसको जूम कर लेता हूं। और बाद रफा भी मजीद जूम हो सकता है डॉक्टर साहब, कर दें। जी जी जरूर 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 जरूर, आप ठीक है। हाँ जी, और बाद रफा भी उम्मती होकर उतरेंगे, ठीक है जी। तमाम अंबिया व मुरसलीन अपने अहद में भी हुजूर के उम्मती थे और अब भी उम्मती हैं, ठीक है। अब आगे सुने, फरमाते हैं एक हजरत मसीह नहीं, जो कोई रसूल भी अब जाहिर हो शरीयत मोहम्मदिया पर ही हुक्म करेगा। हमें तो कहा जाता है कि आला हजरत ने या इनकी किताबों में कहीं ये लिखा ही नहीं हुआ कि और कोई रसूल आ सकता है। आला हजरत ने क्या लिखा है, एक हजरत मसीह नहीं, जो कोई रसूल भी अब जाहिर हो शरीयत मोहम्मदिया पर हुक्म करेगा, जो कोई रसूल भी अब जाहिर हो। इसलिए सियालवी साहिब, पहली बात तो ये है कि आपका ये फरमाना कि गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल नहीं आएगा,
आला हजरत का ये फतवा उसको जुटला रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपने मुअय्यन तौर पर आपके आला हजरत ने फरमा दिया है कि वो रसूल और उम्मती के ज़रिए से आएंगे। और दूसरा उन्होंने एक इम्कानी बात भी कर दी है कि जो कोई भी रसूल आएगा, आप तो कहते हैं कोई रसूल आ ही नहीं सकता, वो हुज़ूर सल्लम की शरीयत में अमल करेगा। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, अवाम को गुमराह ना करें। आपके आला हजरत आपके खिलाफ खड़े हैं। जी जज़ाकल्लाह। जी मैंने फिर बात कर लीजिएगा डॉक्टर साहब, फिर मुझे टाइम दीजिएगा। जी मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूं कि मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप कहां के कहां चले गए। मैंने आपसे सवाल किया था, आला हजरत का जो हवाला आपने पेश किया वो मेरे खिलाफ नहीं है। आप जो कह रहे हैं जो रसूल भी जाहिर हो, तो मतलब जो पहले रसूल आ चुके हैं, मसलन मिर्जा कादियानी साहब ने भी लिखा है कि 4 रसूल जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके बारे में अकीदा है कि वो जिंदा हैं, ये उन्होंने भी लिखा है। तो उनमें से अगर कोई पहले रसूल जो आ चुके हैं, जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपकी आवाज नहीं आ रही, ये बात अभी जो बयान फरमाई है ये दोबारा कहिएगा। बात अभी जो बात बयान की है कि 4 अंबिया के बारे में मिर्जा साहब का क्या अकीदा है, ये बात दोबारा समझ नहीं आई आपकी बात। माजरत, आपको रोका। वो कहते हैं कि वो आसमान पर जिंदा मौजूद हैं, ये उनका अकीदा था। उन्होंने लिखा है, मुझे नहीं पता उनका अकीदा है या क्या, लेकिन उन्होंने लिखा है। मैं कह रहा हूं इम्कानी बात जो आला हजरत ने की है कि अगर कोई रसूल आए तो वो हदीस पाक का तर्जुमा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद हजरत मूसा भी जाहिर हूं तो वो भी मेरी इत्तबा करेंगे। जी जी। तो वो बात कर रहे हैं कि अगर पहले रसूलों में से भी कोई जाहिर होता है तो वो नबी रहमत की इत्तिबा ही करेगा और आपका ही उम्मती होगा। और दूसरी बात यह है कि नबी उम्मती ये और बात है, और उम्मती नबी जो मिर्जा साहब कहते हैं वो और बात है। इनमें बड़ा फर्क है, ये भी ज़हन में रखें। तो मैंने जो बात की थी कि कोई हवाला पेश करें पिछले 1300 साल में से कि आपके बाद कोई नबी आएगा, तो आपने वो कोई नहीं पेश किया। जी जी जज़ाकल्लाह। जी एक मिनट जरी भाई शालवी साहब एक बात वाज़ेह कर दें, ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब आज है 2022, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फर्ज करें 2023 में आ जाएं, आप उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आना मानेंगे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आना मानेंगे? मैं फिर आप बात को उलझा रहे हैं। मैंने जो बात की थी कि मिर्जा कादियानी साहब वो कहां से आए, उनका कोई हवाला 1300 साल में पेश करें कि किसी ने लिखा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी आएगा, वो हवाला पेश करें। आप इस तरफ ना जाएं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे, कैसे आएंगे, उसको आप छोड़ें। जी जी नहीं, मैं मिर्जा कादियानी साहब आप और हमारा जो इख्तिलाफ है उस पर बात करें। डॉक्टर साहब आपने मेरे एक मिनट साहब, आपके ही दोस्त हैं उनको। सियालवी साहब ये बात नहीं है, ये आप ना कहें कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ें। क्यों छोड़ें? आप हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गोया हमने कोई नई बात कर दी है कि हजरत के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी शख्स वो बतौर नबी और रसूल के नहीं आ सकता। हम ये कहते हैं कि यही अकीदा तो आपका है, शख्सियत का फर्क है। आप भी ये मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बतौर रसूल और उम्मती नबी के आएंगे। बतौर रसूल नहीं, ये अपनी तरफ से पेश कर रहे हैं। ये वो आपके आला हजरत का अभी मैंने आपको हवाला दिखाया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो वो आपकी रसालत माजूल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए अवाम को धोखा न दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। जब रसालत माजूल नहीं होगी तो इसका क्या मतलब है कि वो रसूल होंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, आप अवाम को ये कहते हैं, सबक पढ़ाते हैं कि सूरह निसा की आयत व इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही से मुराद ये है कि तमाम अहले किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से पहले उनके ऊपर ईमान लेके आएंगे। दुरुस्त बात है या गलत बात है? जी जी ठीक है।
اور ایمان لانا وہ نبی اور رسول کے اوپر لازمی ہے اسلام کے مطابق. تو آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی اور رسول قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق خود مانتے ہیں سیالوی صاحب. عوام کے سامنے نہیں مانتے، ویسے مانتے ہیں. جی جری بھائی آپ نے کوئی بات کرنی؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جی ٹھیک ہے نہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جری اللہ صاحب نے 10 منٹ گفتگو کی، رفاقت صاحب اور آپ لوگوں نے پہلے 1 گھنٹہ گفتگو کی. تو اب یہ ہے کہ میں بھی 2 بجے حاضر ہوا ہوں. جی ضرور. جری اللہ صاحب کا میں نے ٹائم نوٹ کیا، 10 منٹ گفتگو کی اور پھر آپ جری اللہ صاحب کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے چلے میں سیالوی صاحب کو ایک دفعہ جواب دے کے آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے اچھا سیالوی صاحب بات یہ ہے، میں بات واضح کر دیتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک ایک شخصیت کا امت محمدیہ میں آنے کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ آپ بھی مانتے ہیں، وہ ہم بھی مانتے ہیں. اسی شخصیت کو امتی نبی کے طور پر آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اسی شخصیت کے بارے میں یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہوگی. فرق یہ ہے، میں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ نبی مانتے ہیں یا نہیں، آپ پھر لمبی تقریر کرنے لگا. بتائیں ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ آپ نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل نبی مانتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں نبی. بالکل. فرق اس میں کیا ہے؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی جس طرح آپ نبی مانتے ہیں اسی طرح ہم بھی نبی مانتے ہیں، اور جب دوبارہ بھی آئیں گے تو اسی طرح مانیں گے. جی سیالوی صاحب بات یہ ہے، میں نے بھی جو بات کہہ رہا ہوں آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. ایک شخصیت کے آپ بھی آنے کے قائل ہیں، ایک شخصیت کے ہم بھی آنے کے قائل ہیں. دونوں کو مقام ہم دونوں ایک جیسا دے رہے ہیں، ہم کھل کے اظہار کر دیتے ہیں. آپ نشانیاں ساری وہی بتاتے ہیں، لیکن جب عوام کے سامنے آتے ہیں تو چونکہ ختم نبوت کا آپ نے بہت زیادہ عوام کے ذہن میں ڈال دیا ہوا ہے کہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے، تو مجبوراً اپنے مسلمہ ان باتوں سے آپ انکار کر دیتے ہیں آپ کے سامنے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود آپ کا لٹریچر مانتا ہے. یہ فرق ہے ہمارے میں اور آپ میں. ہم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں ہم بھی وہی مانتے ہیں، آپ بھی وہی مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں جو آئیں گے وہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے، آپ مانتے ہیں جو آئے گا وہ غلام احمد مرزا غلام احمد بن چراغ بی بی ہوگا. تو کون سی نشانیاں ایک جیسی ہیں؟ جی آپ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو مشترک ہو اور آپ میں اور ہم میں. جی سیالوی صاحب اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے، میں نے نشانیوں کی بات تو کی نہیں تھی، آپ نے اس میں بات کی ہے. 1 منٹ آخری بات. ڈاکٹر صاحب میں اس کے بعد ظفرا شاہ صاحب کی طرف چلوں گا. میں آخری ڈاکٹر صاحب آپ موضوع سے دیکھیں، ڈاکٹر صاحب موضوع سے آپ ہٹ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب موضوع وہ آپ کے سیالوی صاحب نے ہٹایا، میں اس کا جواب تو دے دوں نا. عوام کے سامنے انہوں نے بات کی. آپ ہٹاتے ہیں تو میں بھی بار بار جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تو بالکل. سیالوی صاحب ہم ایک وجود کے اسی امت میں آنے کے قائل ہیں. کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایک بھی ایسی جو ہے وہ محکم آیت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. اور کسی بھی ایک آیت کی غیر موجودگی میں ہمارا عقیدہ بالکل وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر حضرت ابو بکر نے اور تمام صحابہ نے جس کے اوپر اجماع کیا، اور وہ یہ اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے رسول گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی موجودگی میں کہ جب پہلے رسول گزر چکے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کی پیشگوئی کی ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامکم منکم امامکم منکم، اس پیشگوئی کے مطابق جس نے آنا تھا وہ اس امت کا ایک فرد ہے. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی پاک ذات ہے. جہاں تک دونوں کے مقام کا جو ہے دونوں شخصیتوں کا، وہ آپ بھی ایک مانتے ہیں، ہم بھی ایک مانتے ہیں. شخصیتوں کا فرق ہے. فرق اس لیے ہے کہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ پچھلے نبی فوت ہو چکے ہیں. جی ظفر اللہ شاہ صاحب، آپ جری بھائی آپ نے کیوں بات کرنی ہے؟ سر میں اسی موضوع کے حوالے سے اسی جو انہوں نے سیالوی صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا ان سارے دیکھتے ہیں وہ فتاوی رضویہ سے ایک بات دکھانا چاہ رہا تھا جو کہ آپ بات بیان کر رہے تھے. میں نے وہ پوری فتاوی رضویہ ڈاؤن کر دیا. آپ 10 منٹ مسلسل بولے ہیں جری اللہ صاحب، 10 منٹ مسلسل بولے ہیں.
میں نے ٹائم نوٹ کیا, آپ 10 منٹ مسلسل بولے ہیں صاحب. آپ ان کو فتاوی رضویہ کا حوالہ دکھاتے ہیں, پھر صفی اللہ شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اچھا, میں یہ سیالوی صاحب فرما رہے تھے کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے تو ان پر ایمان نہیں لایا جائے گا, ان پر ایمان نہیں لانا, یہ بات یہ بیان فرما رہے تھے. ایمان نے یہ جھوٹا بول رہے ہیں, کیوں بات کو ڈاکٹر صاحب انہوں نے شروع میں ایک بات کہی تھی. آپ یہ بات نہ کریں, علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو ٹائم دیں, آپ نے ویسے ہی پانی میں مدانے ڈالے رکھے ہیں. میں نے کب کہا ایمان نہیں لائیں گے؟ سیالوی صاحب ایک منٹ, اگر فتاوی رضویہ سے کوئی تحریر دکھائیں تو یہ پانی میں مڈانی ہے, اس طرح نہ کریں سیالوی صاحب. آپ کے فتاوی رضویہ آپ کے لیے بڑی معتبر کتاب ہے. اور ڈاکٹر صاحب دوسری ایک بڑی بہترین بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے عقیدے کا انکار ان کو کافر بناتا ہے. یہ مان چکے ہیں موصوف. یہی بات میں نے شروع میں بیان کی تھی, یہ تفسیر کا حوالہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر ہم تفسیر کا انکار کریں گے تو ہم کافر نہیں ہو جائیں گے. اور بعد میں خود یہ بات بیان فرمائی کہ اگر ہم احمد رضا خان بریلوی صاحب کا جو عقیدہ ہے اور برحق ہے, اور وہ اپنے ہر عقیدے کو برحق کہتے ہیں, مثلا کوئی امام کہتا ہے بھائی میں نے عقیدہ غلط بیان کیا, یا یہ مانتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی نے جو عقائد بیان کیا وہ غلط ہے, چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں, میں اصل حوالے کی طرف چلتا ہوں. اچھا, اصل حوالہ جو فتاوی رضویہ کا ہے اسی جلد میں سے ہے, یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے موجود ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 ہے, صفحہ نمبر اس کا یہ نیچے دکھاتا ہوں آپ کو, یہ 112 ہے. اس میں اس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بات بیان کی گئی ہے. میں مزید زوم کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ ایزیلی نظر آ جائے. دیکھو جی, اچھا اس میں لکھا ہے کہ اب امتی بھی ہے اور اب بھی امتی ہیں, جب بھی رسول تھے اور اب بھی رسول ہیں, کہ ہمارے حضور نبی الانبیاء ہیں. قال اللہ تعالی لتؤمنن بہ ولتنصرن. اب اس میں وہ کیا بات بیان کریں, یہی مساق النبیین کی آیت ہے. عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بات بیان کی جا رہی ہے. عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی جو آیت ہے, اس وہ جو ان کا واقعہ ہے, اس کو اسی مساق النبیین کی آیت کے تحت لے کے آ گیا کہ بھائی ایک نبی نے آنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہے. تو آگے لکھا ہے کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. یہ لے, اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا جا رہا ہے, ان کی تصدیق بھی ہو رہی ہے اور ان کی مدد بھی کی جا رہی ہے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کے اگر کوئی مصدق آئے گا تو اس سے رسول اللہ کی کثر شان ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہوگی, کثر نبوت ہوگی. اور اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لے کے نا اور اس کی مدد بھی کرنا. یہ آپ کے اپنے بنیادی اعتقادات میں, بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے, جس کو آپ بڑے تمطراق سے انکار کرتے ہیں. اور آپ غلط کہہ رہے ہیں. لتؤمنن بہ سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ آپ پر ایمان بھی لائیں اور آپ کی مدد بھی کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد نہیں ہے کہ ان پر ایمان لے آئیں. چلے, یہ آپ کے اپنے وہ فتاوی رضویہ میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. عیسیٰ ابن مریم میں کہہ رہا ہوں آپ غلط اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, آپ ٹھیک نہیں بیان کر رہے. اب آپ ظفر اللہ شاہ صاحب کو ٹائم دیں. محمد جی, کن کو ٹائم دوں؟ چلیں ڈاکٹر صاحب آپ وہ شاہ صاحب کی طرف چلیں, میں نے وہ بات بیان کر. ٹھیک ہے سیالوی صاحب, آپ کو تھوڑی سی غلطی لگی ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا کسی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آیت کے مطابق کوئی رسول آئیں گے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس فتویٰ میں, فتاوی رضویہ میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو اسی آیت میثاق النبیین کے مطابق ایک رسول کا آنا قرار دیا ہے. یہی تمہاری بحث چل رہی ہے. یہ بات وہ جاری بھائی نے بیان کی تھی. جی ظفر اللہ شاہ صاحب.